Good morning, student. This is the class 9 subject social science, and this is the chapter 3rd. And the topic name is poverty as a challenge, and this is the lecture 3rd of economics. Student, I hope you understand the meaning of poverty, and you know poverty is a situation. Poverty is a situation in which a person is unable to get the minimum basic necessity of life, such as food, clothing, medical facility, education, etc. And poverty line, it is a common method used to measure poverty is based on income and consumption level, and the poverty line is used as a measure of poverty of a country. And the poverty line is estimated by NASO means National Sample Survey Organization after every 5 years. But at the present measurement of poverty lines such as calorie requirement, and in urban area 2100 calorie requirement for urban people and 2400 calorie requirement for rural people. Okay student, so student, let's start our lecture, and today we will discuss about first global poverty scenario. Global poverty scenario means worldwide poverty. In this topic we will discuss about the global level poverty. And next, causes of poverty. Different causes such as British rule, unemployment, overpopulation, uneducation. Okay, and next, anti-poverty measure. Government have some steps taken by the government to remove poverty, and it is such as economic growth and anti-poverty elevation such as Manrega scheme, Pradhan Mantri Gram Yojana, Antyodaya Yojana. Okay, and last we solve some question. That question I have already assigned in previous lecture. So student, firstly, you know, in last lecture we have discussed about the condition of India, and you know Kerala and Himachal Pradesh, Punjab, Andhra Pradesh have the lowest percentage of poor in India, and the Bihar and Odisha have the highest percentage of poor. इंडिया में जो केरल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, परसेंटेज जो पुअर है वो काफ़ी कम है. जो टोटल आपके इंडिया में जो टोटल पॉवर्टी सिनेरियो है वो है 22%, लेकिन उसमें भी स्टेट और टाइम स्टेट के में भी क्या है अलग अलग है. जैसे बिहार और उड़ीसा में जो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, केरला में, पंजाब में पॉवर्टी का रेशो क्या है, काफ़ी कम है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. एंड फर्स्ट, there has been a sustainable reduction in global poverty. It is marked with great regional differences. And poverty declined sustainably in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources development. Global poverty means worldwide poverty condition. And there has been a reduction in global poverty. And it is a great variation in poverty in regional differences. And poverty decline, poverty reduction in China and Southeast Asian countries because it's totally focus on economic growth and it's focus on human resources development. And China has no natural resources, but they totally investment on education, training and हेल्थ. अब इसमें चाइना और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आई है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, चाइना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई. इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे नई नई इंडस्ट्री सेट की गई, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं. टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में. आपको पता है चाइना के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उनका मेन फोकस किस पे है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे. वो अपने इनकम का बहुत 70 to 80% वो क्या करते हैं, एजुकेशन पे, ट्रेनिंग और स्किल्स पे क्या करते हैं,
इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की इकॉनमी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है, और इसी वजह से चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी हो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है. एंड नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 1.9 in 2013. According to data of 1981, China पोवर्टी रेशियो वॉज 88.3, जो उसमें कितनी थी 88.3% थी, और 2008 में 14.7 थी, लेकिन 2013 में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई 1.9, क्योंकि चाइना हैज़ टोटली फोकस्ड ऑन investment of human resources development. And next, in the countries of South Asia, Southeastern Asia हैं जो countries हैं such as India, Pakistan, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the decline has also been rapid from 54% to 15%. जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है इसमें भी जो पॉवर्टी की जो रेशो वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आई है, बहुत ज़्यादा उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या है डिक्रीज़ हुआ है. पहले 54% से लेके अब कितना हो गया 15% हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया है एजुकेशन पे और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्या वैसा इन्वेस्ट किया गया, जिसकी वजह से जो ये पॉवर्टी की जो रेशो वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है. एंड इन सब सहारन अफ्रीकन पॉवर्टी, इनफैक्ट सहारन अफ्रीकन है वहाँ पे भी पॉवर्टी की रेशो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आई है. जो 2005 में 54% थी वो 2013 में 41% हो गई थी. In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 16% in 1990 to 5.4% in 2030. लैटिन अमेरिका में भी जो पॉवर्टी की जो रेशियो है वो भी क्या हुई काफ़ी कम हुई है. 1990 में 16% से लेके अब कितनी होगी 2000, अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2013 इट्स 5.4%. एंड द मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स न्यू goal of future of the United Nations, ending poverty of all types of by 2030. यूनाइटेड नेशन का जो मेन यूनाइटेड नेशन है उनका मेन जो फोकस है, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई है, ऐसा फ्यूचर के लिए ऐसी पॉलिसी उनका मेन जो गोल उन्होंने रखा है कि 2030 तक वो सभी की तरह की जो पॉवर्टी है वो क्या कर देंगे बिल्कुल रेड्यूस कर देंगे. उनका जो मेन एम है इसलिए वो नई नई पॉलिसी को क्या करें एनहांस कर रहे हैं, ताकि कंट्री में से हर तरह की जो पॉवर्टी उसको बिल्कुल क्या किया जाए रिमूव किया जा सके. तो दिस आर द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. और जैसे हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडिया में भी पढ़ा था हमने कि जैसे कि केरला है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीड इन reducing poverty with the help of high agriculture growth rate. And the Kerala has focused more on human resources development. And West Bengal, land reform measures have helped in reducing poverty. And in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grain could have been responsible for the improvement. जैसे हमने इंडिया के बारे में पढ़ा कि केरला में जो पोवर्टी रेशो काफ़ी कम है और बिहार और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है, वैसे क्या है वर्ल्ड वाइड जो पॉवर्टी की है रेंज है वो भी क्या अलग अलग है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं काफ़ी कम है. जो आपकी चाइना है वहाँ पे उन पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा क्या रिड्यूस किया है, क्योंकि उन्होंने इनका मेन फोकस है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे. सारा अफ्रीका उसमें भी पॉवर्टी की रेशो काफ़ी कम आई है. लैटिन अमेरिका में भी क्या है काफ़ी रेशो कम आई है. और यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक अपना गोल रखा है कि 2030 तक हम अपने सारे जो भी हमारा जो गोल है उनको क्या है पॉवर्टी को बिल्कुल रिड्यूस करना. तो दिस इज द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. नेक्स्ट, causes of poverty. First, British rule and rapid simple causes of poverty such as unemployment, overpopulation, literacy level, okay, lack of industrialization. So today we will discuss about the causes of poverty. First, British rule and rapid growth of population. Second, lack of industrialization. Third, unequal distribution of land. And next, social and cultural factor. Okay, so firstly we will discuss about causes of poverty. First, there was a number of causes for the widespread poverty in India. बहुत सारे रीजन है पॉवर्टी के, लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल. इन अकॉर्डिंग टू द
1914, before the 1947, the British government control India, and the British rule, according to the British rule, they control all economic development, and because of low level of economic development under the British colonial administration. पता है आपको 1947 से पहले जो कंट्री थी अपनी, वो क्या थी, ब्रिटिश के कंट्रोल में थी. उससे पहले जो थे आपके थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी आने की वजह से जो उन्होंने हमारे यहाँ पे इतने सालों तक क्या क्या कंट्रोल किया हमारे देश में. पहले वो क्या है, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे. ट्रेडिंग करने की वजह से जो उन्होंने हमारे देशों का कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया. उनकी जो पॉलिसी थी, उन्होंने क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और फॉरेन में जाके क्या करते थे, उसको सेल करते, जिसके बहुत ज़्यादा इनकम अर्न करते थे. जिसकी वजह से हमारे जो इंडिया की जो इकोनॉमी जो डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पुअर हो गया. और जिसकी की वजह से डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, यानी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाने वाले जो कारीगर थे, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे, इंडियन इंडस्ट्रीज सच एज खाकी इंडस्ट्रीज वह डिक्लाइन. और जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, जो हाथ से बना के काम करते थे, और जो आपके जो खाकी जो हमारे इंडिया में बना हुआ था, सूती उद्योग था, खाकी उद्योग था, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है. क्योंकि जो ब्रिटिश थे, उन्होंने नई नई इंडस्ट्री सेटअप करती थी. इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से जो हाथ से बने हुए चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी, और हाथ से बने हुए चीज़ों की डिमांड कम होने की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, उनकी क्या होगी, इनकम काफ़ी कम होगी. और उनकी इनकम कम होने की वजह से, इंडियन इंडस्ट्री बंद होने की वजह से उनकी जो कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी. लेस जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज इंक्रीज. और क्या हो गया, पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, और जॉब अपॉर्चुनिटी कम होने की वजह से जो ग्रोथ रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, कम हो गई थी. जो लोगों को इनकम नहीं होगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जो पॉवर्टी की जो रेशियो थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल. क्योंकि ब्रिटिश रूल ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसकी वजह से जो इंडिया के जो लोग थे, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और बहुत ज़्यादा जो हमारे इंडिया का जो पैसा था बहुत ज़्यादा विदेशों में चला गया था. और हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का था, तो वहाँ हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो यहाँ से बहुत ही लेस अमाउंट पे उसको परचेज करती थी, और बाहर जाके उसको क्या बहुत ज़्यादा हाई रेट में सेल करती, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. और हमारे यहाँ की जो लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थी, जो इंडियन फैक्ट्रीज थी, वो भी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी. एंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन with the spread of irrigation and the green revolution was set up on 1950 to 60, and it was created in the agriculture sector, but it was limited to some part of India only. Lack of industrialization, irrigation with the help of irrigation, such as with the help of method tube wells, dams, we use irrigation. And the green revolution, but it was focused only 2 or 3 states such as Haryana, Punjab, Uttar Pradesh. ग्रीन रेवोल्यूशन 1950-60 में आया था, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या है, इसका केवल ये कुछ ही पार्ट्स में क्या लिमिट हो गया, जिसकी वजह से जो इरिगेशन भी ज़्यादा होने की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया था, लेकिन उसका फ़ायदा भी केवल 2-3 स्टेट में हुआ था, जिसकी वजह से कुछ स्टेट तो बहुत ज़्यादा रिच होगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, और कुछ स्टेट में इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट किया गया. बहुत सारी जो स्टेट थी वो क्या, उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, और जिसकी वजह से क्या होगी, इंडस्ट्री फेल टू प्रोवाइड जॉब्स. बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं, फेल टू प्रोवाइड जॉब्स. एंड द इंडस्ट्री बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब, बट दीज वर नॉट एनफ टू ऑल द जॉब सीकर. जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने जॉब प्रोवाइड की, लेकिन पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से वो वाली जॉब भी क्या है, लोगों के लिए बहुत कम थी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था. एंड पीपल और बहुत सारे जो लोग थे वो भी गांव से शहर की तरफ माइग्रेट हो गए थे. एंड क्योंकि एग्रीकल्चर का में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना होने की वजह से, इनकम कम होने की वजह से लोगों ने क्या किया, गाँव से शहर की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया. एंड पीपल माइग्रेटेड एंड started
डूइंग ऑर्गेनाइज जॉब सच एज वेंडर, रिक्शा पुलर, डोमेस्टिक वेंडर, और इसकी वजह से उन्होंने क्या है शहर में आके रहना स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से वो शहरों में ही क्या है अर्बन एरियाज में ही क्या है छोटा मोटा काम करने लगे, सच एज वेंडर, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, रिक्शा पुलर, डोमेस्टिक वेंडर एंड डेली वेजेस वर्कर. And with irregular small income, these people could not afford expensive housing. एक तो इनकम काफ़ी कम होने की जैसे डेली बेसिस वर्कर थे, इनकी इनकम बहुत ज़्यादा क्या थी, कम थी और इरेगुलर थी, यानी कि डेली नहीं थी, उनको डेली बेसिस पे नहीं मिलती थी उनको, तो जिसकी वजह से कि दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन द स्लम एरियाज ऑफ द सिटी. और जिसकी वजह से जो लोग अर्बन से रूरल से अर्बन एरियाज में आए थे वो क्या है स्लम एरिया में रहना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से जो कंडीशन थी वो गांव के साथ शहर में भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी. Third, unequal distribution of land and unequal distribution of income between people, such as rich people, maybe rich and poor people become very poor. Failure of land reform and lack of land resources. एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या अनइक्वल है, और लैंड में कोई भी रिफॉर्म नहीं किया गया, और इसकी वजह से बहुत सारी क्या है मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म विच एम्ड एट redistribution of assets in rural area have not been implemented properly, leading to poverty in India. लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्या है बहुत सारे पॉलिसी बनाई, बहुत इनिशिएटिव किया, लेकिन क्या है उनका मेन एम था रूरल एरियाज की जो असेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि दोबारा इसको को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि सभी को क्या है इक्वली उनको क्या है प्रपोर्शन प्रोवाइड किया जा सके. लेकिन क्या है उनको जो पॉलिसी बनाई गई उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो गांव में है वो क्या है अनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लोगों में, जिसकी वजह से जो लोग पुअर थे वो और भी ज़्यादा क्या हो गए थे पुअर हो गए. यही कारण है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. ओके, और लैंड रिफॉर्म नहीं किया गया, लैंड रिसोर्सेज में कमी थी, जिसकी वजह से लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, और ज़मीन ना होने की वजह से उनके पास क्या है वो दूसरे के यहाँ काम करते, डेली बेसिस लेबर थे. ओके, और जिसकी वजह से जो वहाँ की पॉलिसी थी वो भी क्या इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से जो इनकम थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी कम हो गई थी. ओके, नेक्स्ट सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर. In order to fulfill social obligation and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. You know, India is a religious country. We follow all religion, and we follow all religious ceremonies. And यहाँ जो भारत में जो लोग हैं बहुत सारे क्या हैं धार्मिक कार्य में लगे होते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, जिसमें क्या है जो गरीब लोग हैं वो भी जैसे क्या हैं उसमें भी क्या है वो अपने कोई ना कुछ रिलीजियस सेरेमनी को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा पैसा क्या करते हैं स्पेंड कर देते हैं, स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी. चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो क्या करते हैं अपने अपने सोशल कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा उसमें क्या करते हैं स्पेंड कर देते हैं. एंड स्मॉल फार्मर नीड्स मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. अब स्मॉल फार्मर को अपने खेती करने के लिए उसको क्या चाहिए एग्रीकल्चर इनपुट चाहिए, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड. बट स्मॉल फार्मर इज़ वेरी पुअर, एंड सिंस पुअर पीपल हार्डली एनी सेविंग, और उसके पास कोई भी सेविंग नहीं होती क्योंकि उसकी इनकम इज़ वेरी लो, एंड दे बोरो मनी, सो दे बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड मनी लैंडर. और इसकी वजह से वो क्या करता है बैंक से और मनी लैंडर से पैसा बोरो करता है, और बोरो करने की वजह से उसको क्या करना दे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दे अनेबल टू रीपे लोन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, एंड दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेपेंडेंस. और क्या है जो एग्रीकल्चर वो टोटली डिपेंड ऑन मॉनसून. ओके, तो कई बार क्या है जो गरीब लोग हैं वो क्या है अनेबल टू रीपे लोन, और वो क्या है लोन को रीपे करने में अनेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा क्या पुअर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डेप्टनेस में वो विक्टिम, दे बिकम विक्टिम और डेप्टनेस, मीन वो कर्जे में क्या होते हैं डूबते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार लोन लेते हैं उनको फिर दोबारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है. तो ये सारे जो रीज़न है दीज आर द causes ऑफ पॉवर्टी. फर्स्ट आर British rule and overpopulation. Second is
lack of industrialization, and third is unequal distribution of land, and fourth is social, culture, and economic factors of poverty. Okay, these are the factors of causes of poverty. Anti-poverty measure. Removal of poverty has been one of the major objective of Indian development strategy. जो इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दे टोटली फोकस ऑन रिमूव ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. जो इनका मेन जो फोकस है, उनका फोकस यही है कि किस तरह कंट्री में से क्या किया जाए, आपका पॉवर्टी को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए. इसके लिए इट इज़ बेस्ड ऑन, और जो एंटी पॉवर्टी मेजर हैं वो 2 प्लैंक्स पे डिपेंड, यानी कि दो मेन थिंग्स पे डिपेंड है. फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, and second targeted anti-poverty program, and these anti-poverty program started by the government to remove the poverty from the country. First, link between economic growth and poverty reduction. लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत लिंक होता है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ करती है, जैसे किसी की पर्सन के पास इनकम ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी, पॉवर्टी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो फर्स्ट इज India's economic growth has been one of the fastest in the world. इकोनॉमिक ग्रोथ जो 1980 से पहले ना इकोनॉमिक ग्रोथ, ना तो ग्रोथ हो रही थी और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, यानी स्टेबल थी, बहुत कम थी यानी ग्रोथ. लेकिन 1980 में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इकोनॉमी ग्रोथ किया, और द ग्रोथ रेट हैड इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 3.5% in a year in the 1970 to 6% during the 1980-1990. जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो 3.5 से लेके 6% तक क्या होगी, इम्प्रूव कर गई. तो जिसकी वजह से जो 1980-90 में 6% जो ग्रोथ रेट थी वो 6% थी. एंड द हायर ग्रोथ रेट हैव सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड इन रेड्यूस द पॉवर्टी. और जैसे ज़्यादा इनकम होगी तो हमारी पॉवर्टी भी क्या होगी, कम होगी. तो दीज आर द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिड्यूक्शन. क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से पॉवर्टी ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम हो जाती है. और जो आपकी 1980 और 90 के बीच में जो इकोनॉमी ग्रोथ थी उसकी थी परसेंटेज 6%. एंड फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. फर्स्ट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब क्रिएशन विद इन द कंट्री विच प्रोवाइड्स स्टेबल लाइवलीहुड टू पीपल एंड देयर बाय reducing the number of people under poverty. You know, China and other South Asian countries invest on human resources development to remove the poverty, because human resources development enhance economic growth, and economic growth gives opportunity of job creation. क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो नई नई इंडस्ट्री सेट होगी, नई नई इंडस्ट्री सेट होगी तो नए नए लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, नई नई जॉब क्रिएट होगी, और जिसकी वजह से लोगों को क्या किया जाएगा, उनको अच्छी जॉब प्रोवाइड की जाएगी, और जॉब प्रोवाइड करवाने की वजह से जो लोगों की जो पॉवर्टी कंडीशन है वो भी क्या होगी, काफ़ी कम हो जाएगी. तो इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा क्या है, प्रमोट किया जाता है. इट आल्सो प्रोवाइड द रिसोर्सेज such as investment needed for human development, such as education, medical facility, transportation, which further allows growth and creation of job. Economic growth also provide the resources such as investment needed for human. It also enhance the education, medical facility and transportation and क्रिएशन ऑफ जॉब्स. ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो एजुकेशन ज़्यादा होगी, एजुकेशन ज़्यादा होने की वजह से लोग अवेयर होंगे, एंड मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही क्या होती है, डिपेंड करती हैं. तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से सभी जो पॉवर्टी को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा. Next, anti-poverty programs. First, some steps taken by the government to remove the poverty from the country. First, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee. So, it is also called Manrega, and it was started in 2005 to provide employment to rural peoples. Second,
Prime Minister Rozgar Yojana. Third, Rural Employment Generation Program, and it is also called REGP. Fourth, Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana. And fifth, Pradhan Mantri Gram Udyog Yojana. And next, Antyodaya Anna Yojana. And this anti-poverty program we will discuss in next lecture. Okay, so these are anti-poverty programs started by the government to remove the poverty from the country. Okay, and student, today your homework solution. First question is, which states of India are the poorest? And answer is Odisha and Bihar continue to be the poorest state with poverty ratio 47 and 43%. Question second, how have Kerala and West Bengal reduced their poverty? Answer, Kerala has focused more on human resources development, and in West Bengal, land reform measures have helped in reducing poverty. Question number third, how is poverty line estimated periodically? The poverty line is estimated periodically, normally after every 5 years, by conducting sample survey, and these surveys are carried out by the National Sample Surveys Offices, and it is also called NASO. Question fourth, why is the calorie requirement of rural areas more than that in urban areas? Answer is, people living in rural areas engage themselves in more physical work. Calorie requirement in rural areas are considered to be higher than in urban areas. Question fifth, which state of India have seen a significant decline in poverty? Answer is, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. Question 6, what is the accepted average calorie requirement in India? And the answer is, the accepted average calorie requirement in India is 2400 calorie per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Homework, student, today your homework, do following question in your fair notebook. And question number first, describe how the poverty line is estimated in India. Question number second, how are China and Southeast Asian countries able to control poverty? Question number third, how did unemployment lead to poverty? Question number four, which state has the lowest percentage of poor in India? And question number fifth, how is economic growth linked with poverty reduction in India? Question number six, identify the social and economic groups which are the most vulnerable to poverty in India. Question number 7, discuss the major reason for poverty in India. Student, all question done in your fair notebook, and mention proper name, roll number, section, and you can send your homework on WhatsApp and on Gmail also. Thank you.